So after completing beta chapter flying together, so today we are going to start with the make sentences. So the first word is, you are to tell me what are the different sentences that you can make, and for that keep your books with you. ये सारे words बेटा आपकी book में से ही हैं, आपके chapter में से ही हैं. So please keep your reader books with you. And whenever I tell you to make sentence of any particular word, try to find out from your book also. इससे बेटा आपका ना ये concept clear भी होगा कि वो word while reading also I told you कि कौन सा word कैसे particularly use किया गया. So now this is your turn to frame sentences, because you are not to frame the same sentences which are told by me. जो मैं आपको होमवर्क में भेजती हूँ आपने वो सेम नहीं लिखने बेटा. That is just an idea for you कि ऐसे सेंटेंस बन सकता है. So try to frame your own sentences, right? So the first word is, it is advice. ADVICE. आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओगे, आप ही बताओगे, you are to type in chat box कि ADVICE ये noun होता है या verb होता है. Quickly type in chat box, because while reading yesterday also I explained this thing. Okay, very good, very good. Waiting for your responses. Okay, I've got so many responses. Good, 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 good. Very nice. You all are right. You all are right. ADVICE, advice. It is a noun. Now make it sentence. अब इसका sentence बनाओ. For that, I'm telling you, आप अपनी book में भी देख सकते हो. You can search for the sentence in your book also. आपकी book में ये word use किया गया है. While reading I told you. जिसने कल ध्यान से पढ़ा था उसको फटाफट ये मिल जाएगा. फटाफट ये मिल जाएगा. Otherwise, if you know the answer, otherwise you can tell me. You can type in chat box. Otherwise also, if you know the answer, you can frame a sentence. Okay, he gave me a good advice. No, no, no. I acted upon my mother's advice. Very good. ये अब देखो, acted upon मतलब उनका कहना माना. जो उन्होंने मुझे advice दी उस पे ही काम किया. Very good. Our parents or elders gave us good advice. Okay. Follow. Okay. Advice. I forgot that he. No, this is wrong, bete. This is wrong. I advise you. No. I advise you मतलब मैं आपको एडवाइस देता हूँ, तो एडवाइस देना वो तो वर्ब हो गया. लो, और स्पेलिंग भी तो देखो ना, वहां पे स्पेलिंग चेंज हो रहे हैं बेटा. ADVICE लिख रहे हो, वो वर्ब होता है, वो नाउन नहीं होता. I obey my father's advice. Okay, okay. He acted upon my advice. She gave me a good advice. Okay, very nice. तो ये आपके सारे आंसर्स ठीक हैं. Okay, now listen. Listen बेटे. अब ध्यान से आपने ये सुनना है कि जब आप सेंटेंस में he advised me, I advise, ADVICE यूज कर रहे हो बेटा, वो वर्ब होता है, वो नाउन नहीं होता. और जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो नाउन कैसे पता चलता है? नाउन ऑलवेज गिव आंसर ऑफ व्हाट. ओके, नाउन व्हाट का आंसर देता है. और जब आप सेंटेंस में किसी की आप फॉर्म चेंज कर सकते हो, जैसे एडवाइस का एडवाइज्ड हो गया, ADVISED, तो 3 फॉर्म्स तो वर्ब की होती है ना, ये याद रखो. तो वो वर्ड नाउन कैसे हो सकता है? जब आपने एडवाइज्ड लिख दिया तो वो तो नाउन हो ही नहीं सकता. तो ये चीजों का बेटे ध्यान रखना है सेंटेंस बनाते टाइम. ओके, वेरी गुड. Yes, the geese forgot the old wise bird's advice. Very good. ढूंढ लिया आपने बुक में से. Good, good, good. Very good, very good. Okay. Now next word is advice. ADVISE. अब सबको पता है अब ये क्या है? ये नाउन नहीं है. अब ये क्या है? Now it is verb. Okay. तो आपको जैसे मैंने बोला है, you can change its form. आप अब देखो, जब हम एज वर्ब यूज करते हैं ना, तब हम एडवाइज्ड, ADVISED ऐसे भी कर सकते हैं. ही इज एडवाइजिंग, ING भी लगा सकते हैं.
आईएनजी जब लगाओगे तो उसके साथ इज, एम, आर या वॉज वर्ब होना चाहिए। ओके, ये चीजों का ध्यान रखना है। ओके ओके, गुड गुड गुड, आई कैन सी मेनी रिस्पॉन्सेज। ओके, गिव मी, बेटा गिव मी एन एडवाइस, वो ADVISE नहीं होगा, फिर क्यों गलती कर रहे हो? ही गेव मी, व्हाट का आंसर आ रहा है ना, तो व्हाट का आंसर जो वर्ड देता है वो तो नाउन होता है। मैंने आपको बोला है ADVISE एज वर्ब आपने करना। माई फादर एडवाइज्ड मी टू डू माई वर्क। ओके, माई टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। चैप्टर में से मिला, चैप्टर में से मिला आपको एडवाइस वर्ड? ढूंढो, पढ़ो चैप्टर को, देखो, जिसमें कल ध्यान से मैंने साथ साथ मार्क करवाया था, मैंने आपको मार्क करवाया था साथ साथ में कि यहाँ पे ये तो इसकी यूजेज एज नाउन है, एज वर्ब है। दर्श आपको मिला बेटा आंसर? बुक में से मिला? ट्राई टू फाइंड इन योर बुक एवरीबॉडी। वेरी गुड वेरी गुड। भवनीत जी, स्टॉप प्लेइंग विद योर डिवाइस बेटे, स्टॉप प्लेइंग। बुक में से बताओ कहाँ एडवाइस का है एज वर्ब, बताइए कहाँ पे है? ओके, the wise old bird advised to destroy the creeper. Very nice, very nice, good. Now both the words are clear, both the words are clear. ADVICE noun होता है and ADVISE verb होता है। Very nice, हाँ जी बेटा। Next word is notice, NOTICE, notice। notice आपने पहले, चलो as verb, नोटिस अब नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है, तो पहले आप एज वर्ब बताओ। अगेन बुक में मेंशन किया हुआ है, आई टोल्ड यू टू मार्क, आई टोल्ड यू टू मार्क। आई टोल्ड यू टू मार्क। हाँ जी बेटे, the geese did not notice. Okay, noticed an ant near my foot. Okay, very good, good good good. The wise old one noticed a creeper. Okay जी, very nice, notice किया, वहां पे ध्यान दिया, देखा। Okay, ठीक है बेटा। notice as verb। अच्छा, notice as noun क्या होगा? notice as noun, okay, who will tell me its meaning in Hindi? notice as noun, अगर मैं पूछूं आपको notice as noun क्या होगा? Okay, you are to raise your hands, you are to raise your hands for giving me that response कि notice as noun क्या होगा? Okay, I can see many hands, good 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 good, but again the same hands। बाकी क्यों नहीं ट्राई कर रहे? बाकी क्यों नहीं बेटा? लेट इट बी रॉन्ग, होने दो गलत, कोई बात नहीं, आपने भी ट्राई करना है, सबने ट्राई करना है। नोटिस एज नाउन क्या होगा? हाँ जी, भूमिका मैनी, भूमिका मैनी बताइए। हाँ जी बेटे, नोटिस एज नाउन, भूमिका मैनी बताइए क्या मतलब है बेटा नोटिस एज नाउन का? मैम जैसे कोई नोट देना, जैसे कोई नोट। अच्छा, आपको अभी कल हमने एक नोटिस भेजा था ना, आज सुबह भी एक नोटिस भेजा था। यस मैम, भेजा था ना, तो वही नोटिस हो। नोटिस एज नाउन, नाउन मैंने क्या बोला है? व्हाट का आंसर। ओके, तो उस नोटिस को लेके अब सेंटेंस कौन बनाएगा? हाँ जी, अब सेंटेंस कौन बनाएगा? नोटिस एज नाउन। ओके, वेरी गुड। आई यस, इट इज जगजीत सिंह, जगजीत सिंह। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, नहीं, ओके, हर्षिका, हर्षिका विल टेल मी, हर्षिका फिफ्थ ब्लू। हाँ जी। Our teacher gave us a notice of holiday. Yes, our teacher sent us a notice of holiday. Okay, notice regarding holidays was sent to the students. Okay, तो नोटिस क्या है? ये जो आपको एक नोटिस दिया जाता है, ओके, एक इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, दैट इज अ नोटिस। अ नोटिस वाज पेस्टेड आउटसाइड द क्लासरूम। ओके, तो देख लो, 2-3 सेंटेंसेस मैंने बता दिए, अब आपने अपने फ्रेम करने, राइट?
Okay, next word is trap. Trap, T-R-A-P. Trap as noun. ट्रैप एज नाउन. देखो बुक में ये वर्ड दिया हुआ है, बुक में देखो. आई वॉन्ट यू टू टर्न द पेजेस ऑफ योर बुक. दिस वर्ड इज गिवन. कल मैंने बताया था कल आपको. देखो ढूंढो कहां पे है. ट्रैप. द बर्ड्स वर कॉट इन अ ट्रैप. यस, the birds were caught in a trap. Trap क्या है? वो net. Okay, जाल जिसको. So the birds were caught in a trap. And trap as verb. हाँ जी. Yes, yes, book में से ढूंढ लिया. The hunter spread a trap to catch the birds. Very good, very good. हाँ जी, trap as verb. The hunter, yes, yes. The hunter trapped a flock of sheep. Okay, okay, okay. The hunter trapped the geese. ये बुक में दिए हुए sentences. Very good, very good. Good, good, good. It means you are searching. Okay. बेटा बुक में देखो. Please don't sit still. Everybody look for the sentences in your book. ये वर्ड सारे बुक में है. कल मैंने मार्क भी करवाए थे बच्चे. Very good, very good, very good. Students are giving responses. बेटा spread a trap on the top of the tree. वहां पे trap जो है that is as noun. The hunter trapped the geese. वहां पे it is used as verb. Okay, very good. Next word is reply. हाँ जी, reply का मीनिंग पता ना सबको. reply का मीनिंग, reply मतलब, reply का मतलब क्या होता है? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड. ये बड़े तुम्हारा तुम लोगों की सबकी ना टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी अब. वेरी गुड. बेटा टू आंसर नहीं. रिप्लाई अगर हम एज वर्ब कहेंगे तो टू आंसर, आंसर देना. जब एज नाउन है तो इसका मतलब सिर्फ आंसर. चलो अब इसका आप एज नाउन, रिप्लाई एज नाउन, इसका सेंटेंस बनाओ जल्दी से. रिप्लाई एज नाउन सेंटेंस बनाइए. गुड गुड गुड. नो नो नो. शी नेवर रिप्लाई टू माई क्वेश्चंस. नो बेटा, नेवर रिप्लाई टू मतलब वो जवाब नहीं देती. जवाब देना वो तो वर्ब हो गया. नो, गलत. ही गेव मी अ रिप्लाई. यस, शी गेव अ क्विक रिप्लाई. उसने जल्दी से जवाब दिया. ठीक है. गेव वहां पे वर्ब गेव हो गया ना, देना. क्या दिया? रिप्लाई. शी गेव अ क्विक रिप्लाई. ओके. एंड रिप्लाई, ये तो मेरे वाला ही सेंटेंस है. खुद लिखो ना. द स्टूडेंट्स डू नॉट रिप्लाई. ये यहाँ पे बेटा डू नॉट रिप्लाई मतलब क्या? डू नॉट रिप्लाई का ऐसे आप सोचते नहीं हो. डू नॉट रिप्लाई का मतलब रिप्लाई नहीं करते, नहीं करना. वो तो फिर वहां पे वर्ब हो गया. ओके. तो ये चीजों का बेटे ध्यान देना. आई सेंट हिम अ लेटर एंड ही his reply was wrong. Yes, his reply was wrong. Okay, this is reply as noun. The words reply, the wise bird, ये as verb है. Okay. What we will do now? Replied the birds. तो replied the birds बेटे ऐसे नहीं लिखना. See, इस तरह के sentences में अगर आप लिखोगे क्योंकि the reason is replied the birds, फिर वहां पे आपको सारे inverted commas वगैरह लगाने पड़ेंगे. तो ऐसे मत लिखना. As it is जैसे दिया no. He replied quickly. उसने जल्दी से जवाब दिया. ओके. अब देखो वही चीज है. He gave me a quick reply. वहां पे रिप्लाई क्या है? एज नाउन. ही रिप्लाइड क्विकली. उसने जल्दी से जवाब दिया. अब रिप्लाइड IED, वहां पे ED लग गया. इट मीन्स वो सेकेंड फॉर्म. तो इस तरह से आपने बेटे इनके सेंटेंसेस बनाने. इज इट ओके? क्लियर है? अब किसी को डाउट है सेंटेंसेस फ्रेम करने में? अब किसी को ये तो नहीं डाउट कि मैम हमें यही नहीं पता चलता इसको एज नाउन कैसे बनाना है, एज वर्ब कैसे बनाना है? ऐसा तो नहीं है ना? सबको क्लियर है बेटा?
ओके वेरी गुड। हाँ जी बेटे, अब बेटे जल्दी से, मैंने आपको डिक्टेशन वर्ड्स भी दिए थे, आई होप आप सबने नोटबुक्स पे लिखे हैं, सो कीप योर नोटबुक्स ओपन, योर नोटबुक्स अलोंग विद दैट, जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। नोटबुक, शो मी योर नोटबुक्स जहां पे आपने डिक्टेशन वर्ड्स लिखे हैं लेसन 2 के। ओ वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीबॉडी इज नॉट शोइंग। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, मतलब आधा काम तो मेरा यहीं पे चेक हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। बेटे एक लाइन छोड़ के लिखो, अभी पेन के साथ लिख रहे हो ना, तो अभी इनिशियली एक लाइन छोड़ के लिखो, बाद में चाहे तुम। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ओके गुड बेटे, गुड, जिन्होंने नोटबुक्स दिखा दी है। ओके नाउ बेटे, फर्स्ट वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या है? प्रिटेंड का मतलब क्या है? प्रिटेंड का मतलब क्या है? मैंने कल बताया था आपको, लिखवाया भी था बुक में। हाँ जी, कौन बताएगा? टू एक्ट एज, यस इट इज टू एक्ट एज, ठीक है, कि एक बहाना बनाना, जो ओरिजिनल नहीं हो वैसा करना, बहाना बनाना। ओके प्रिटेंड हो गया। टेंडर का मतलब, टेंडर का मीनिंग, मीनिंग ऑफ टेंडर, चैट बॉक्स क्विकली क्विकली। टेंडर का मीनिंग, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज सॉफ्ट, वेरी नाइस, टेंडर का मीनिंग सॉफ्ट। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स ट्राई हार्ड टू गेट समथिंग, कि किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करना, एक जद्दोजहद करना, दैट इज स्ट्रगल। ओके, मटर, MUTTER, मटर, ये भी मीनिंग बताया था। व्हाट इज इट? मटर। वेरी गुड वेरी गुड, MUTTER। बेटा प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, स्पोक इन अ लो टोन, लो वॉइस। ओके, धीरे धीरे कुछ अपने आप में बोलना, यस धीरे धीरे बोलना, दैट इज मटर। वेरी गुड। सरप्राइज, something very shocking. Okay, right. Then arrangement. Arrangement means to a way to organize something, किसी चीज को organize करना, that is arrangement. Next word बेटे है beneficial. Beneficial का मतलब होता है advantageous. Write down that meaning. आपको ये meaning पता होने चाहिए. It is advantageous. ADVANTAGEOUS, एडवांटेज। पहले एडवांटेज लिख लिया, एडवांटेज का स्पेलिंग पता ना, एडवांटेजियस, EOUS, एडवांटेजियस, फायदेमंद जिसको हम बोलते हैं, फायदे वाला, लाभदायक, हिंदी में पढ़ा ना लाभदायक वर्ड आपने, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट का मीनिंग होता है जेनरस, GE, note down the meaning, Navdeep, note down the meaning. Beneficent, it is generous, GENEROUS, generous का मतलब दयालु, दयालु, दूसरों पे बहुत दया करने वाला, दूसरों की हेल्प करने वाला। ओके, बेनिफिसेंट का मतलब है generous, GENEROUS। जसनूर सिंह, जसनूर सिंह, बेटे stop playing with your device. नेक्स्ट इज ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का मतलब होता है विड्थ,